Okay, it's almost 3:05. Great. Okay, so please confirm whether I'm audible to all. You can confirm on chat, please. Hello. Sure. Thank you very much. Okay, so very good afternoon to all of you and welcome to this Mission Reboot orientation meeting. This is our fifth meeting. Before that, already we have done orientations meeting and people who have recently joined us. So they have many questions regarding this. First of all, I had flashed a post regarding community organizer. So let me make it very clear. This is regarding to that session itself. Okay, my voice is low. Is it so? Now is it clear? Let me check. Okay, thank you. Okay, so as I stated, there are two things regarding to it. First of all, let me just tell you, my name is Asiya, and of course, this entire sessions is being organized by Arun Education Health Foundation. Okay, so let me start my presentation. First of all, what is this mission reboot? Few people have got my message that you are a part of mission reboot. Few people have got message regarding to community organizer and leader. So in that case, let me make it very clear. This is a complete one, you can say project. Okay, you can say it's an umbrella. And under that we have different projects. And few people have asked me question regarding direct, what is the exact earning source or what is the exact earning medium we can get through this. Okay, there is various things attached to it. Okay, so let me start with that. First of all, let me understand from you people, what do you understand by the concept mission reboot? What does this name click to you? It should be an interactive session, so please give me some answers in regards to it. What do you understand by mission reboot? Anyone? Yes, I can see Mr. Sunil is there, Mr. Ashok is there. So yes, participants. There would be something which you can recollect or you can just imagine, like what is exactly mission reboot according to you. What do you understand by these words? Anyone? Either yes, no? Yeah, to restart life again after this pandemic. Okay, thank you, Mr. Ashok. And very good thing you pointed out. It's exactly the restart of life again, but not after pandemic. It is during this pandemic. That is the basic thing which we want to make realize people about it. That whatever we are doing for this moment. I'm taking this session right now at this moment. I don't know after few moment or after a few minutes what will happen about for my life, what will happen for me. I am not at all aware of it. Okay, so that is the reason I've mentioned the part. Let's relive our life again, but this thinking should be of every day, for each minute, for each second. If you people are agreeing, please write okay. So I'll come to know ki yeah, you do agree on it. Yes, do you agree with me for that? Okay, considering you people are agreeing, let me just come. What exactly is Mission Reboot all about? So as it is clearly mentioned on the slide, it is a complete income earning system through our education and health projects. As I stated, this entire thing is been organized by Arun Education Health Foundation. I am the founder and CEO of this foundation. So we are running an education and health projects, due to which you can do earning. Of course,
but what I prefer is you should learn, implement and earn. This is what is I feel about this project. But yeah, many people are asking directly for earning. Very well, I can understand, due to this pandemic people are looking out for something monetary benefit out of it, so surely you'll be getting the monetary benefit. But before that, it's a very simple concept. Even if you start a job or even if you do anything in the life, first of all you try to learn about it, try to study about it, then only you continue. And if you're getting a complete understanding of the job or the work you do, then only you get success and then you get the monetary benefit out of it. So the same process we follow in this, it is nothing different. The name sounds like Mission Reboot, something a filmy name or something, but of course it's a very serious concept, it is a very required thing in our life. So this is what is all about Mission Reboot. Okay, now many of the people are wondering like, what is Arun Education Health Foundation, who is ASEAN, how come they are coming right now in front of us? So it's not like कि ये foundation अभी start हुआ है. Of course it was long back, 2.5 years back this foundation was working, but we were working in the offline mode. So now due to this pandemic we got an opportunity. Actually it's not a challenge, but I took it as an opportunity so that we can conduct the sessions online and help people understand what are the opportunities lying in front of them. Okay, so let me first explain you what exactly is the vision, mission, goal of our foundation, so that you can get a connectivity with us. Our vision is very clear. We inspire people for self discovery process. It's nothing like I'm taking a seminar or a webinar, but again this process is entirely lying with you. If whatever I am delivering the contents to you, if you are not agreeing with it, if you are not comfortable with it, you will not accept that. And if you're not accepting that, then of course it will not work out. So that is the reason it is not something I will give certain formula or any mantras for earning money or so. I will be sharing my experience, I will be sharing certain projects with you, and of course then you can self discover yourself ki, okay, which is my interest area, what is my passion, you can develop according to that. Okay, mission is of course we are planning to empower minimum 1 lakh individuals for self actualization. Now what is the self actualization? Can anyone tell me, have you heard this word self actualization? Anyone? First of all let me know, like, are you comfortable in English or should I switch the language like Hindi, Marathi? Yes, participants. हिंदी इंग्लिश मिक्स में बोलूं या प्योर इंग्लिश बोलूं या प्योर मराठी बोलूं? हिंदी विल बी गुड. ओके फाइन, थैंक यू अशोक सर. सो जैसे मैं बता रही थी कि हमारे जो फाउंडेशन का विजन, मिशन, गोल जैसे वहां पे लिखा है सेम क्रिस्टल क्लियर है. हम चाहते हैं कि लोग जो है खुद को एक्सप्लोर करें, और ये सच में एक अच्छा मौका मिला है. आप बोले कि मैडम कोरोना है, यहाँ पे लॉकडाउन बढ़ा जा रहा है और आप बोल रहे हो कि अच्छा मौका है. सच में मैं भी इसी के थ्रू इसी फेज में से जा रही हूँ. मैं कोई अलग नहीं हूँ, इसी बोल सकते इसी दुनिया का एक हिस्सा हूँ. बट सच में बताऊं ना तो ये एक अच्छा मौका हमें मिला है खुद के लिए वक्त देने का, जो हमारे डेली शेड्यूल में हम नहीं दे पा रहे थे. 9 to 5 जॉब या हमारा जो भी टास्क रहता था, फिर घर की जिम्मेदारियां, ये सारी चीजों में कहीं ना कहीं हम कुछ चीजें जो है अपने लिए नहीं कर पा रहे थे. तो ये वो वक्त मिला है हमें. बहुत जन होंगे हम में से जो वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे रहेंगे, फिर भी थोड़ा सा भी एक अलग से वक्त, जो ट्रैवलिंग का टाइम था, वो सारी चीजों जो है वो वक्त है आप सच में खुद के एम्पावरमेंट के लिए या खुद के सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, डिस्कवरी के लिए जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं. ओके, मिशन ये है कि हम 1 लाख इंडिविजुअल्स जो है मिनिमम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ लेके जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं. तो वही मैंने पूछा था, क्या आपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ये वर्ड कभी सुना है या इसके बारे में किसी को पता है, या कोई कुछ बताना चाहेगा इसके बारे में? एनीवन? यस, नो, पता है, नहीं पता है, कुछ तो बोलिए. सी इंटरैक्टिव रखेंगे तो अच्छा लगेगा. नो, ओके. सुनील सर, सी मुझे ऐसे नहीं चाहिए कि आ रहे लेक्चर सुन के जा रहे.
तो नहीं तो मैं वही, मेरे पास जो प्रीवियस रिकॉर्डिंग है मैं वो सेंड कर सकती थी कि आप बैठिए सुनिए कि मिशन रिबूट क्या है, कि आप कैसे पैसे कमा सकते हो। सो प्लीज मेक इट इंटरैक्टिव सो दैट मुझे समझे कि आपको क्या डाउट्स है, क्या डाउट्स नहीं है, ये डाउट सॉल्व करने के लिए है। ओके, लेट मी कंटिन्यू। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी एक सिंपल एग्जांपल मैं दूंगी। एक मैस्लोस थियरी है, जिन्होंने स्कूल में भी सीखा रहेगा, या मोस्टली मैनेजमेंट स्टडीज में आता है। ये बेसिकली एक ट्रायंगल रहता है जिसमें एक एक लेवल्स रहते हैं। जैसे सबसे पहला एक इंसान क्या चाहता है कि वो अपनी बेसिक नीड सेटिस्फाई करे, जैसे भूख, प्यास, नींद, ये सारी जो बेसिक से बेसिक नीड है एक इंडिविजुअल पर्सन की। उसके बाद ऑफ कोर्स आता है कि वो सिक्योरिटी देखता है, यानी घर, बैंक बैलेंस, ये सब चीजें देखता है। तो ऐसे कर करके जो नेक्स्ट लेवल आता है उसमें आता है कि एक्सेप्टेंस, कि लोग मुझे एक्सेप्ट करें। फिर वो फ्रेंड्स ढूंढता है। उसके बाद आता है सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम में ऑफकोर्स क्या आता है कि आप जब पब्लिक में जाए तो पब्लिक आपको एक पहचान दे कि अरे ये मिस्टर अशोक है, ये मिस्टर सुनील है, आप इनको जानते हो, ये काम करते हैं। जैसे मैं जब जाती हूँ तो मुझे ऑफकोर्स एक, मैं महिला सबलीकरण बाल विकास का काम करती हूँ, वुमेन एम्पावरमेंट चाइल्ड डेवलपमेंट, तो ऑफकोर्स मेरे सर पे वो टैग है, बट आई एम प्राउड ऑफ इट कि मुझे लोग बोलते हैं अरे वो जागरूकता वाली मैडम आई है, वो महिला सबलीकरण वाली मैडम आई है। सो ऐसे टाइम पे मेरा नाम मैटर नहीं करता है, या कभी नाम किसी को पता भी नहीं रहता, वो मेरे को उसी नाम से पहचानते, उसी नाम से बुलाते हैं। सो ये एक प्राउड फीलिंग है कि आप पब्लिक में जब जाते हो तो आपको उस नाम से पहचाना जाता है जो आप काम कर रहे हो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट आई फील, कि आपने कुछ तो लाइफ में अचीव किया है। सिमिलरली एक वेरी कॉमन एग्जांपल है शहीद भगत सिंह का। उनके जो लाइफ में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्टेज है वो स्टार्टिंग से ही था। वो पहले से ही जानते थे कि मुझे देश के लिए कुछ करना है, देश की आजादी के लिए कुछ करना है। उनके लिए तभी भूख, प्यास, नींद, ये सारी इंपॉर्टेंस कभी नहीं थी। तो जो मैस्लोस का ट्रायंगल मैंने बताया है उस हिसाब से उनके लिए सबसे प्रायोरिटी पे पहले ही सेल्फ एक्चुअलाइजेशन था। वो पहले से ही जानते थे मेरा गोल क्या है, मुझे क्या करना है, उससे क्या, किससे चीज से खुशी मिलती है। ओके, सो ऐसे बहुत जन थे। या थैंक यू मिस्टर अशोक। सो ये जो है हमारा मिशन इस तरीके से है, और गोल एकदम क्लियर है कि हम चाहते हैं कि सेल्फ ड्रिवन लीडर्स क्रिएट हो। इसके लिए अभी मैं यहाँ पे क्लैरिफिकेशन करती, जो मैंने कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर डाला है वो है कंसेप्ट, कि टेक्निकल लगता है बट है वही चीज कि हम सेल्फ ड्रिवन लीडर्स चाहते हैं। और ये लीडर कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं, ये लीडर्स रहेंगे कि आप इसी सोसाइटी का भाग जो है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक अलग रोल प्ले करोगे। आप अपने घर को एम्पावर करोगे, आपको देख के आपकी जो आजू बाजू का एरिया, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, वो एम्पावर होंगे। ये पूरी वो जर्नी है। सो टोटली हम इसको बोल सकते हैं ये सेल्फ एम्पावरमेंट प्रोग्राम है। ओके, नेक्स्ट मेरे बारे में बताना चाहूंगी तो बहुत कुछ है। जिन्होंने ऑलरेडी व्हाट्सएप पे वीडियो देखा है तो अच्छी बात है, अगर किसी ने नहीं देखा तो एक शॉर्ट में ब्रीफ करती हूँ मेरे बारे में। जैसे मैंने बताया, मैं खुद जो है फाउंडर एंड सीईओ अरुण एजुकेशन हेल्थ फाउंडेशन की। उसके अलावा मैं लेडी फ्लाई कंपनी की रीजनल डायरेक्टर हूँ। जैसे मैंने कहा हम लोग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करते तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कोच, ये भी मेरी एक पहचान है। अस्मिता प्रोजेक्ट लीडर, हमारे पास खास महिला सबलीकरण बाल विकास के अंडर अस्मिता प्रोजेक्ट है, उसके बारे में भी मैं इसमें बताऊंगी। साथ ही साथ मैं प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ जीनियस इंडिया एज वेल एज न्यूटन लर्निंग सेंटर की। सो ये भी, ये हमारे एजुकेशन प्रोजेक्ट्स के हम बोल सकते हैं जो मेन पर्सन है, उनसे मैं उनकी मैं प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ। साथ ही साथ में जो लेडीज ग्रुप्स रहते हैं, महिला ग्रुप्स, वहां आपकी सदस्य हो। जैसे आप देख सकते हैं स्वयं सिद्धा फाउंडेशन है, प्रगल्भ द सुपर वुमन है, ये और इसके अलावा भी बहुत कुछ है, बट ये बेसिक हाइलाइट्स है। अभी सबसे बड़ी बात, अभी आप बोलोगे मैडम ये सब तो ठीक है, पैसे कैसे कमाने हो बताओ। तो सबसे पहली एक बात हाईलाइट करना चाहूंगी, पैसे कमाने के लिए अभी फिलहाल हमें क्या आ रहा है, चैलेंज आ रहा है, या कहीं बाहर जाने के लिए चैलेंज आ रहा है, कुछ अपने मन का करने के लिए चैलेंज आ रहा है। तो इसके लिए हम लोग सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, और जो सोल्यूशन भी ऐसा ढूंढ रहे हैं जिससे हम लोग को रिजल्ट मिलेगा। सो ये फेज ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे लाइफ में या आपके लाइफ में, ये एक बोल सकते हैं एक स्टैंडर्ड रूल है। कोई भी चीज करने जाओ, कोई भी इंसान रहेगा उसके साथ ये तीनों चीजें होने वाली है। सिर्फ ये चीज है कि आप जो जो मैंने इसके लिए कलर कॉम्बिनेशन भी वही दिया है। चैलेंज आने के बाद आप सॉल्यूशन ढूंढते हो या आप यू टर्न लेके फिर से वहां पे जाते हो,
या आप चाहते हो चैलेंज मैंने एक्सेप्ट किया है, मैं इस पर सोल्यूशन ढूंढूंगा, और सोल्यूशन ढूंढ के एक सोल्यूशन अगर से सेटिस्फेक्शन नहीं तो मैं दूसरा ढूंढूंगा, तीसरा ढूंढूंगा, एंड फाइनली आई विल सी टू इट कि वो सोल्यूशन रिजल्ट तक जाए। ये पूरी जर्नी जो है यही हमारी सेल्फ एम्पावरमेंट जर्नी है, इट्स नथिंग अदर देन दैट, बस यही एक है। ओके, जैसे मैंने बताया ये चैलेंज हमें भी आए, जब मैंने ये अरुण एजुकेशन हेल्थ फाउंडेशन एस्टेब्लिश किया उसके पहले मेरा खुद 11 साल जॉब एक्सपीरियंस है, 3 साल मेरा खुद का जो है कंप्यूटर इंस्टीट्यूट था डोंबिवली में। सो जॉब और बिजनेस ये सबका एक्सपीरियंस मैं ले चुकी हूँ। जॉब भी मैंने अलग अलग प्रोफाइल्स में अलग अलग डोमेन्स में किए, एचआर, एडमिन, कॉर्पोरेट मार्केटिंग तक भी मैंने किया है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैंने बोला कि करके देखते हैं, एक जॉब अपॉर्चुनिटी आ रहे तो लेट अस टेक दैट, ऐसे करके मैंने हर जगह से कुछ ना कुछ सीखा है। ओके, जॉब की जरूरत है, ग्रेट, तो वही उसके बारे में बता रहे हो। मिस्टर विकी, इज इट मिस्टर विकी, राइट? ओके, सो इसके बारे में जैसे मैंने बताया, इवन हमें भी ये चैलेंजेस है, तो हमारा चैलेंज आप बोल सकते हो, आप बोलोगे बहुत कॉमन है कि आपको जागरूकता यानी अवेयरनेस करना है सोसाइटी में, इसमें कौन सी बड़ी बात है, बट सच में आप यकीन नहीं करोगे ये सबसे बड़ा चैलेंज था। आज मैं एजुकेशन और हेल्थ के बारे में अगर कोई प्रोग्राम रखती हूँ तो लोग उतने इंटरेस्टेड नहीं रहते, उसके अलावा मैं कोई कुकिंग का रखूं या और किसी मूवीज के रिलेटेड रखूं या कुछ भी करूं जो एंटरटेनमेंट है जिससे आपको खुशी मिलेगी, वो आप एक्सेप्ट करते हो। बट एजुकेशन एंड हेल्थ अभी भी कहने को बहुत बुरा लग रहा है कि लोग अभी भी उतने सीरियस नहीं है, बावजूद इसके ये दोनों चीजें हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ओके, सो हमने इस पे सोल्यूशन फाइंड आउट करना स्टार्ट किया। हमने क्या शुरुआत की कि हम सर्वेस करने लगे पहली बात तो, उसके बाद हम लोग ने फिर वो लोकल लेवल पे जाके मीटिंग्स कंडक्ट करना शुरू किया। धीरे धीरे अच्छा रिस्पॉन्स है, हमने सेमिनार लिया, और फिर जैसे हम कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर का अभी जो पोजीशन यहाँ पे हम लोग ने फ्लैश किया था पोस्ट, वो हमने ऑलरेडी क्रिएट किए हैं, ऑलरेडी वो वर्किंग में है। सो वो तभी ऑफलाइन मोड पे हम डायरेक्ट कांटेक्ट कर पा रहे थे, इसके लिए डायरेक्ट हम उनको तभी के तभी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में इन्वॉल्व कर रहे थे, उनको लोकल लेवल पे जाके ट्रेनिंग दे रहे थे, तो वो इमीडिएट रिजल्ट आ रहा था। अभी ऑफ कोर्स हमें जो है ऑनलाइन पे डिपेंड होना पड़ रहा है, दैट्स गुड थिंग कि इसके वजह से हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम लोग इसका बेनिफिट ले सकते हैं। एंड रिजल्ट अगर आप देखोगे तो हमारे पास ऐसे कितने तो हाउसवाइफ है यानी गृहिणी है के जो जिनको सिर्फ इतना ही काम पता था कि हाँ बच्चे संभालना है, खाना पकाना है, टीवी सीरियल्स देखना है, इसके अलावा उनकी कोई जिंदगी नहीं थी। वो ऑफ कोर्स उनको जब ये प्रोजेक्ट समझ में आया तो इसमें वो एज अ अस्मिता लीडर करके काम कर रहे, जो हमारा महिला सबलीकरण का प्रोजेक्ट है उसमें वो एज अ लीडरशिप करके काम कर रहे। उसके बाद हमें एज अ अपॉर्चुनिटी मिली इंटरव्यू देने के लिए साम टीवी पे, मेनेस्ट्रल हाइजीन पे हमारा एक प्रोग्राम था, वहां पे इंटरव्यू देने का चांस मिला। साथ ही साथ हम लोग जो है हेडलाइंस में भी थे एक लोकल न्यूज़पेपर के। यहाँ पे अगर आप पिक्चर्स देख सकते हो, अभी तक का ये हमारा पूरा ऑफलाइन जो भी हमने अचीवमेंट्स किए हैं फाउंडेशन ने, वो सबके यहाँ पे क्लिपिंग्स मैंने दिए हैं। अगर आप चाहते हो, साम टीवी का जो इंटरव्यू है वो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है, जिनको वो मराठी में ऑफ कोर्स, इन केस अगर किसी को जाना है दे कैन विजिट। अगर इसके बारे में किसी को और डिटेल चाहिए ऑफ कोर्स आप ड्यूरिंग ये सेशन के एंड में आप इसके बारे में पूछ सकते हो। नेक्स्ट, ऐसे इस तरीके से हम सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं। ओके, अभी आपके दिमाग, बहुत लोगों के दिमाग में आ सकता है कि मैडम तो पूरा एकदम सोशल वर्क सोशल काम बता रही है, पैसे का तो कुछ बता नहीं रहे। सो कमिंग कमिंग टू द मेन पॉइंट, लोग बिना मोटिवेशन के काम नहीं करते, आई डू अंडरस्टैंड, बट आपको पहले पता होना चाहिए कि हम किसके साथ काम कर रहे हैं, तो इसके लिए ये सारी चीजें मैं आपको बता रही हूँ। ओके, एक शॉर्ट वीडियो है, जस्ट मैं वो प्ले करना चाहती हूँ। आई होप ये प्ले होगा। ओके, ओके, रियली सॉरी, प्ले नहीं हो रहा है, नो इश्यूज। लेट्स गो टू व्हाट इज एग्जैक्टली मिशन रिबूट। तो जैसे मैंने बताया, मिशन रिबूट जो है सेल्फ एम्पावरमेंट प्रोग्राम, जैसे मैंने ये बताया। ओके, विकी सर ने क्या लिखा, पैसा सब कुछ नहीं है मैम, सोशल वर्क तो अच्छा है, गुड गुड, थैंक यू वेरी मच।
आई रियली अप्रिशिएट कि आपने सच में ये बोला है, बावजूद इसके कि आपने बोला कि जॉब की जरूरत है, बट डू यू डू रियलाइज दैट. थैंक यू वेरी मच. सो मिशन रिबूट जैसे मैंने बताया एकदम सिंपल टर्म्स में मैंने यहाँ पे लिखा है, कुछ नहीं है. आपको अगर खुद भी एक्सप्लेन करना रहेगा किसी को तो आप ये इजी टर्म्स में बता सकते हैं. आप ये एक स्लाइड भी बताएंगे बिना कोई प्रोजेक्ट्स किसी को बताए तो भी ये इजीली बोल सकते हैं एक्सप्लेनेबल स्लाइड है. जैसे मिस्टर अशोक ने बोला था कुछ नहीं है, तो ये क्या है, रिस्टार्ट द लाइफ. यानी क्या, पूरी लाइफ रिस्टार्ट करने का तो चांस नहीं मिल सकता है हमें, बट हाँ रिस्टार्ट द लाइफ है ना, अभी ये सेशन के बाद आप सोच सकते हो, ये सेशन के दौरान भी सोच सकते हो कि मैडम जो बोल रही है वो कितना सच है कितना नहीं है, मेरे जो लाइफ पे कितना एप्लीकेबल है, इसके बारे में आप सोचना स्टार्ट कर सकते हो. वो भी एक रिस्टार्ट प्रोसेस है. सेकेंड, इंक्वायर करना. आस्क. आस्क यानी क्या, पूछो. जैसे मैक्सिमम मेरे जितने भी ओरिएंटेशन सेशंस हुए, फेसबुक लाइव सेशंस हुए, सब मैंने यूट्यूब वीडियोस भी शेयर किए हैं, बट लोग पूछते नहीं है, डरते हैं पूछने से. आई डू अंडरस्टैंड कुछ क्वेश्चंस ऐसे कि मैडम चेन बनाने हैं क्या, मैडम इसमें लोगों को जोड़ना है क्या, इसमें वो पावर लेग और क्या क्या जो टेक्निकल टर्म्स यूज करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग का वो करना है क्या. लेकिन आप पूछोगे तो ही तो मैं बता पाऊंगी. ओके. तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें जब तक आप पूछोगे नहीं, आप खुल के नहीं ये करोगे, तब तक कोई भी आपको हेल्प नहीं कर सकता. ओके. देन जैसे मैंने बताया रिबूट का जो बी है, इट इज समथिंग बिगिन. यानी अभी आपने डिसाइड कर लिया, आपने सवाल पूछे, जैसे कल जिन्होंने जो ऐड हुए ग्रुप में उन्होंने सवाल पूछना स्टार्ट किए, ऑफकोर्स मुझे बहुत अच्छा लगा. इसके लिए मैंने सोचा कि ओके फाइन, हम एक ऐसा सेशन जरूर ले सकते हैं जिससे इनके डाउट क्लियर हो सके, क्योंकि सिर्फ चैटिंग करने से डाउट सॉल्व नहीं होते, आपको क्वेश्चन पूछना जरूरी है तब जाके डाउट सॉल्व होंगे. ओके. सो बिगिन यानी अभी आपने डिसाइड किया ओके फाइन ये मेरे काम का है, सच में अच्छा है, तो इसके बारे में ऑफ कोर्स मैं जो है डिसाइड कर रहा हूँ. ओके. ओके, आप आपकी बात पहले बताओ. ओके फाइन श्योर, बट इस बीच में अगर डाउट रहेगा तो जरूर पूछिए, जब डाउट होगा तो क्लियर करेंगे. ओके फाइन, थैंक यू अशोक जी. ओके. देन आउट ऑफ द बॉक्स, यही सबसे बड़ा एक चीज है. आउट ऑफ द बॉक्स यानी उसको दूसरे टर्म में बोल सकते हैं कंफर्ट जोन. लोग कंफर्ट जोन में बहुत रहते हैं. तो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है ना, अभी तक आपने लाइफ में जो नहीं किया है, आप करना चाहते हैं बट नहीं कर रहे हो, या कुछ रुकावटें आ रही है, उसको पार करके कोई वेज अगर आपको दिख रहे, कोई राह आपको दिख रही है, तो उस पे चलना आपको पड़ेगा. ओके. ये मैं पहले ही क्लियर कर रही हूँ, इट विल बी नॉट अ इजी वे. क्योंकि बोलते हैं कि बहुत आसानी से आया हुआ पैसा आसानी से जाता भी है, और वो आपको कुछ नहीं सिखाता. ओके. तो उससे अच्छा कुछ ऐसी चीज जो आपके लाइफ को सच में बदलाव के जगह पे परिवर्तन अगर दे, तो वो ज्यादा आपके काम आएगा. ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है. मैं भी जैसे सर ने कहा लास्ट में, जब आपको कोई डाउट्स रहेगा यू कैन आस्क अस. फिर अपॉर्चुनिटी, फिर जब आपको पता चलेगा ठीक है मैंने डिसाइड किया, अभी तक जो लाइफ में जी रही थी या जी रहा था वैसा नहीं, चलो थोड़ा हटके मैं करूंगा या करूंगी, तो ऐसे चीज में फिर मेरे सामने सिलेक्शन का है. जैसे मैंने कहा हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट है, आप कोई एक प्रोजेक्ट सिलेक्ट करके उस हिसाब से उसमें आप आगे बढ़ सकते हो. एंड देन ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग हमारे तरफ से तो रहेगी, बट जैसे मैंने कहा ट्रेनिंग ऐसी बिल्कुल नहीं रहेगी जैसे अभी है. ये ट्रेनिंग ऐसे रहेगी जिसमें आपको बोलना है और मैं सुनने वाली हूँ, क्योंकि वो ही सेल्फ एम्पावरमेंट प्रोसेस में आपको आगे हेल्प करेगा. अगर उस टाइम भी अगर मैं ही बोलूंगी आप सुनोगे, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन मेरा होगा, आपका नहीं होगा. क्योंकि जितने बार मैं सेशंस लूंगी, जितने बार मैं बोलूंगी, उतना मेरे में एक बोल सकते हैं, एक जैसे हीरे को तराशते उस तरीके से जो है मेरे में इम्प्रूवमेंट आता जाएगा. बट मैं चाहती हूँ कि आप में वो सेल्फ एम्पावरमेंट आए. ओके. नेक्स्ट, तो प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं, तो जैसे मैंने कहा मिशन रिबूट इट्स टोटली अ बिग अम्ब्रेला, ये एक बड़ा छाता है. इसके अंडर हमारे पास अभी ये 5 प्रोजेक्ट्स है, बहुत सारे पाइपलाइन में है, बट मैंने ही इंसिस्ट किया कि पहले ये सारे प्रोजेक्ट्स जो है डिजिटल मोड में इनको स्ट्रीमलाइन करना बहुत जरूरी है. ओके. इसमें से अस्मिता जो है वो कम्प्लीटली एक्चुअली हम लोगों ने वुमेन एम्पावरमेंट के अंडर रखा था, बट ऑफकोर्स हमारी कुछ महिलाओं ने ही इंसिस्ट किया कि मैडम अस्मिता आप जो है जेंट्स लोगों के लिए भी ओपन रखिए. सो मैंने कहा ओके फाइन, ऑफकोर्स जो भी एक औरत करती है पूरे घर के लिए करती है,
सो इनकेस अभी वो लॉकडाउन के टाइम वो काम नहीं कर पा रही है, तो उसके जगह उनके हस्बैंड, भाई या जो भी है, जो भी रिलेशनशिप में रहे, वो जरूर इसमें काम कर सकते हैं। तो हम लोग ने इसको कम्प्लीटली अभी ओपन रखा है। ओके, फिर लेडी फ्लाई करके भी एक कंपनी है, जो भी उनके भी बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हमारे पास है। जीनियस इंडिया, ऑफ कोर्स एजुकेशन का सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट हमारे पास जो है वो जीनियस इंडिया का है। एंड ऑफ कोर्स हमारे साथ और एक ब्रांड है जो है ओरावेल, ये मिस्टर अश्विन कुमार राहटे का है। ही इज ऑल्सो फिटनेस प्रोफेशनल फ्रॉम 15 ईयर्स। इस प्रोजेक्ट में जो भी पैनल मेंबर है उनके भी मैं फोटोग्राफ्स आपको बताऊंगी, उनके प्रोफाइल आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो। इवन मेरा नाम भी आप सर्च कर सकते हो, फाउंडेशन का नाम भी सर्च कर सकते हो, आपको सारी डिटेल वहां पे अवेलेबल मिलेगी। ओके, नेक्स्ट। ओके, नाउ स्टार्ट विथ द प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स क्या। तो जैसे मैंने कहा, सबसे पहले हम लोग एजुकेशन प्रोजेक्ट लेंगे जो है जीनियस इंडिया, डॉक्टर मोहन पाकरे सर जो है उनका। ये प्रोजेक्ट जो है टोटली हम काम करते हैं स्टूडेंट, टीचर और पेरेंट्स के लिए। ओके, आप में से बहुत सारे ये किसी रोल में जरूर रहेंगे। स्टूडेंट तो ऑफ कोर्स नहीं बोल सकते, बट ओके फाइन, टीचर या पेरेंट या आपके आजू बाजू में ऐसे कोई रह सकते हैं। तो ये हम लोग ऑफलाइन मोड पे उनके लिए कंप्लीट एक स्टूडेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम करते थे। ओके, ना बहुत लोगों को लगेगा कि अरे मैडम, मतलब कोई तो एक ऑनलाइन कोर्स देने वाली है लगता है। ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रोजेक्ट पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में हम बोल सकते हैं बहुत एक अलग से रिसर्च किया हुआ प्रोजेक्ट है। और ये सबसे पहले तो आपका कोई भी एजुकेशन सिलेबस कवर नहीं करती है। ये कोई टिपिकल कोर्स नहीं है जिसमें आपको आपको बोल सकते ये सब्जेक्ट तुम्हारा इजी हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कम्प्लीटली एक आपको भी एजुकेशन देने वाला प्रोजेक्ट, आपके लिए एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा अगर आप इस प्रोजेक्ट में काम करते हो तो। ओके, इसके साथ हम टीचर्स को टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी देते हैं। साथ ही साथ पेरेंट्स को भी हम बहुत सारे पेरेंटिंग रिलेटेड कुछ गाइडेंस देते हैं। अगेन जैसे मैंने कहा, दिस इज अ सेल्फ एम्पावरमेंट, वो पेरेंट्स खुद ही समझ जाते हैं और खुद ही फीडबैक देते हैं कि बहुत अच्छा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे एक लोगो दिया है कि मनी बैक, सो ये फुल गारंटी है डॉक्टर मोहन पाकरे की कि जो भी उनके इस प्रोग्राम को लेता है, वो अगर पेरेंट सेटिस्फाइड नहीं है और वो बोलते हैं कि नहीं मेरे बच्चे ने कुछ भी नहीं सीखा है, तो ऑफ कोर्स वो ऑन द स्पॉट वहां पे मनी रिफंड भी करने को तैयार है। एंड आई डोंट थिंक सो ऐसा कोई ऑनलाइन कोर्स मैंने देखा है जो ऐसा कुछ कर रहा है। ऑफलाइन मोड पे भी चलता था ये, ऑनलाइन मोड पे भी उन्होंने वही सेम एक्सेप्ट किया कि या अगर कोई नहीं अगर सेटिस्फाइड है, वी विल बी रिटर्निंग द मनी बैक। इतनी गारंटी वो लेते हैं। और जितना मैंने उनके साथ काम किया है, हम लोग ने जो है एक पास्कल ट्रायंगल इन ह्यूमन फॉर्मेशन जो है उसमें मैं प्रोजेक्ट लीडर करके काम करती थी। ऑफ कोर्स वो गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में रजिस्टर हुआ है पास्कल ट्रायंगल। और उसके साथ ही मैं सर के साथ इस जो है मिशन एजुकेशन के रिलेटेड जुड़ी हूँ। ओके, अब यहाँ पे है क्या, तो एजुकेशन प्रोजेक्ट में हमारे पास है स्टूडेंट ट्रांसफॉर्मेशन मास्टरी, जो सर ने अभी ऑनलाइन मोड पे इसको लेके आए। और ये क्या है, तो ये ब्रेन साइंस टेक्नोलॉजी, इस पे आधारित जो है साइंटिफिक मेथड और टेक्निक यूज करके हम बच्चों को जो है पढ़ाई करने का एक अलग तरीका बताते हैं। या फिर आप बोल सकते हैं बच्चे जिस तरीके से पढ़ रहे हैं या बच्चों का जो उनका टेक्निक है वही उनको रियलाइज करवा रहे। हम उनको अलग आउट ऑफ द बॉक्स कुछ भी नहीं देने वाले। ओके, यहाँ पे आप देखोगे इसकी जरूरत ही क्यों है। पहली बात तो ऑफकोर्स जरूरत है क्योंकि यहाँ पे ट्रेडिशनल मेथड से अगर काम चलता था तो सर को बैठ के इतना रिसर्च करने की कभी जरूरत पड़ती ही नहीं थी। ट्रेडिशनल मेथड में हम जिस तरीके से पहले पढ़ते थे वही अभी पढ़ेंगे, वही बाद के जनरेशन को भी वही सेम टेक्निक से अगर पढ़ाएंगे तो रिजल्ट नहीं आ रहा है, ये हम देख पा रहे हैं। मेरी मम्मी का जो स्टडी स्टैंडर्ड था और अभी मेरा स्टडी स्टैंडर्ड है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। मेरा खुद 4.5 साल का लड़का है, उसकी नर्सरी का सिलेबस और मेरा जो पहले का सिलेबस था मैंने कंपेयर किया तो बहुत फर्क है। शायद मुझे वो सेकेंड थर्ड स्टैंडर्ड में था जो वो नर्सरी में है। सो इस तरीके से पेरेंट्स को भी उतना टाइम ही नहीं रहता है, वो कोप अप नहीं कर पाते कि बच्चा पढ़ता नहीं है, ठीक है कोचिंग क्लास में डालो, कोचिंग क्लास में हो जाएगा। लेकिन वहां पे भी नहीं होता क्योंकि हर एक जन सिलेबस पढ़ाने के पीछे पड़ता है। पढ़ाई कैसी करनी है, कौन सी टेक्निक से करनी है, इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, तो यहाँ पे जैसे कुछ पॉइंट्स बताए,
पहले तो बच्चों को आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर दे कि उनका करंट स्टडी पैटर्न क्या है, वो आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है। उसके बाद अगेन स्टूडेंट को भी सेल्फ डिस्कवरी में प्रोसेस में डाला जाता है। जब तक बच्चा खुद खुल के नहीं बताएगा उसको क्या अच्छा लगता है, पढ़ाई करने के लिए उसको बोल सकते ना एक एंजॉयमेंट होना चाहिए, बर्डन नहीं होना चाहिए कि पढ़ाई करना पड़ रहा है। उसको लगना चाहिए हाँ ये करना है, ये सब्जेक्ट करना है, ये मुझे बहुत पसंद है, मैथ्स प्रॉब्लम ऐसे फटाफट सॉल्व करना है। कुछ बच्चे हैं जो खुद वो बोलते हैं ना उनको उनमें पहले से ही है या वो स्किल्स है कि वो खुद से सेल्फ स्टडी कर लेते हैं, बट बहुत से बच्चों का चैलेंज ये है कि वो सेल्फ स्टडी नहीं कर पाते, खुद के टाइम टेबल सेट नहीं कर पाते, उनके लिए ये प्रोग्राम जरूर काम आएगा। उसके बाद जैसे बताया मेंटल गोल सेटिंग, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं नहीं ये मेरे से नहीं हो पाएगा। अगर माँ बाप बोलते हैं कि नहीं 80% लाना है, 40% से 80%, तो बच्चा खुद बोलता है मैं खुद 40% निकाल रहा, 80% कहाँ से आएगा। बट ये बच्चे को भी नहीं पता है कि उसमें कितना पोटेंशियल है, तो वो मेंटल गोल सेटिंग उनको देना जरूरी है। और इसमें कहीं ना कहीं माँ बाप का रोल प्ले होता है। क्यों? हम बोल तो देते बच्चे को 80% लाना है, देख उसने लाया 80%, तो तू क्यों नहीं ला सकता। बट ये तो सोचो कि उसने 80% लाया है, उसके अलग पैटर्न है, आपके बच्चे के अलग पैटर्न है, और ऊपर से आपने उनको क्या स्टेप्स दिए करने के लिए, आपने उनको मंजिल दी है, बट राह कौन देगा, उनको रास्ता कौन बताएगा कि किस रास्ते पे क्या है, कहाँ पे खड्डा है, कहाँ पे तुझे संभलना है। ये सारी चीजें हमारी भी उतनी जिम्मेदारी है। ओके, सो ये सारी चीजें आपको सर के प्रोग्राम में क्लियरली दिया गया है, वो ऑटोमेटिकली बच्चा खुद से ही करेगा, आपको कभी उसके पीछे पड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट एक बार उसका व्हाई क्लियर होना जरूरी कि ये मुझे क्यों करना है, क्यों 80% लाना है, क्या होने वाला है, उसको वो इंटरेस्ट आएगा, उसका व्हाई क्लियर होगा तभी, और तभी वो पढ़ाई में इंटरेस्ट ले पाएगा। उसके साथ नॉन सपोर्टिव थॉट, उसके वो जो बोलते हैं ना अलग कुछ अजीब थॉट्स है, जो नेगेटिव थॉट्स है, या उसकी बिलीफ है कि नहीं ऐसा ही होगा, मैं कितना भी पढ़ूंगा मुझे नहीं आता है, मैं कितना भी पढ़ू एग्जामिनेशन हॉल में मैं भूल ही जाता हूँ, तो ऐसा नहीं है। वो मेंटल ब्लॉक उसका निकलने में हम जरूर उनकी मदद करेंगे। साथ ही साथ उनको एक एक्शन प्लान दिया जाएगा। जैसे मैंने बोला 80% निकालना है, बट 80% तक कैसे पहुंचेंगे, वो प्लान ऑफ एक्शन जब तक उनको नहीं मिलता है तो बच्चे भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो वो क्लैरिटी उनको मिलना बहुत जरूरी है, वो इस प्रोग्राम से उनको मिलेगा। साथ ही साथ साइंटिफिक स्टडी मेथड, अलग अलग तरीके के कौन कौन से मेथड वो यूज कर सकते हैं पढ़ाई के लिए, वो टूल्स उनको दिया जाएगा। हम जंग पे तो भेज देते हैं बच्चों को एग्जामिनेशन में, बट क्या रहता है उनके पास हथियार, वो भी तो देखना बहुत जरूरी है, कितना प्रिपरेशन हुआ है वो भी देखना जरूरी है। और इसके वजह से होगा क्या, तो उनका एक सेल्फ इमेज क्रिएट होगा, वो खुद एंजॉय करने लगेंगे, और अगली बार से खुद बोलेंगे कि ये एग्जाम छोड़ो, ये तो हो ही जाऊंगा मैं पास, बट मेरे को और जो एग्जाम्स रहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम उसमें भी बैठना है, उसमें भी अपियर होना है, तुम मेरा फॉर्म भर दो, नहीं तो मेरे को पैसे दे दो, मैं फॉर्म भर के आता हूँ। ये कॉन्फिडेंस उनमें आएगा। और ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, ये सर ने 20 साल एजुकेशन इंडस्ट्री में काम किया है, आज वो लायंस क्लब के डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन है। उसके अलावा आप सिर्फ उनका नाम भी गूगल पे डालोगे, पिछले सेशन में एक हुआ था, मैंने जब डॉक्टर मोहन पकरे नाम बोला तो सामने जो ऐसे ही चल रहा था सेशन, तो उन्होंने लाइव सर्च करके देखा कि कौन है डॉक्टर मोहन पकरे, और गूगल पे पूरी इंफॉर्मेशन उनके बारे में आ गई। सो अगर ऐसा आपको तब तक सर्च करके देखना, यू कैन चेक। ओके, सो ये एक चीज है कि हम जो है पूरी तरीके से 4 क्वाड्रेंट में काम करते हैं, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल। और ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, ये चारों क्वाड्रेंट सबके लिए उतने इक्वली इंपॉर्टेंट है। हम सब भी फिजिकल मेहनत ज्यादा लेते हैं, मेंटल पे यानी नॉलेज बढ़ाने पे, स्पिरिचुअल यानी मेडिटेशन है, इमोशन, ये सारी चीजों पे कंट्रोल, या फिर हम लोग ध्यान ही नहीं देते, कंट्रोल तो आगे की बात है, पहले तो उस पर ध्यान देना जरूरी है, वो हम नहीं दे पाते। ओके, ज्यादा से ज्यादा हमारा फोकस क्या रहता है, फिजिकल एफर्ट्स डालना, फिजिकल एक्टिविटीज करना, हम उसी पे ज्यादा जोर डालते हैं, जबकि हमें इस पे ज्यादा इन्वेस्ट करना है, या इस पे ज्यादा सोचना है, इसको ज्यादा खाना देना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो ये प्रोजेक्ट में जो है आप एज अ प्रमोटर और एफिलिएट मिनिमम 5% से 10% आप अर्न कर सकते हो। और इसके साथ यहाँ पे फिलहाल सर ने फ्री फ्रेंचाइजी ऑफर रखी है। फ्री फ्रेंचाइजी यानी नॉर्मली फ्रेंचाइजी जिसको बोलते हैं कि आपको कुछ एक डिपॉजिट अमाउंट देना पड़ता है और फिर वो फ्रेंचाइजी मिलती है, और फिर उसी मॉडल में काम करना पड़ता है जैसा सामने वाला बोल रहा है।
क्योंकि अगर मैंने मेरी फ्रेंचाइजी दी तो मैं जो बोलूंगी, शर्तें दूंगी, वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सर ने एजुकेशन को आगे तक लेके जाने के लिए, जैसे मेरा विजन मिशन गोल है, सर का भी विजन मिशन गोल है कि कम से कम 1 लाख बच्चों तक ये जो है प्रोडक्ट पहुंचना जरूरी है। उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म करना बहुत जरूरी है। एजुकेशन उनके लिए एक बर्डन नहीं, तो एजुकेशन उनके लिए एक एंजॉयमेंट लगना चाहिए, एक फन लगना चाहिए, तब जाके उनको वो करियर में भी हेल्प करेगा। उतनी इंपॉर्टेंट चीज है उनके लाइफ की एजुकेशन। बट वो बर्डन करके अगर लेंगे और फिर माँ बाप जो है उनके पीछे पड़ेंगे, तू पढ़ता नहीं है, ये करता नहीं है, वो नेगेटिविटी रहेगी। ये सारी चीजों का सोल्यूशन इसमें है। ओके, सो जैसे मैंने कहा, इसमें आपके लिए अर्निंग अपॉर्चुनिटीज दो तरीके से है। आप डायरेक्ट एज अ फ्रेंचाइजी भी ले सकते हो, या फिर एज अ एफिलिएट या प्रमोटर करके भी काम कर सकते हो। और भी इनके ये प्रोजेक्ट्स है, जैसे मैंने बताया, उसमें जो प्रोडक्ट मैंने बताया, स्टूडेंट का टाइम टेबल वो कैसे बना सकता है और उसको आगे कंटिन्यू कैसे कर सकता है। हर एक बच्चों की पढ़ने लिखने की एक क्षमता रहती है, वो यहाँ पे दिया किस तरीके से पढ़ता है। कोई जो है सिर्फ देख के समझ पाता है, कोई सुन के समझ पाता है, कोई उसको छू के समझ पाता है। ये फैक्ट है, ये एक स्टडी है, एक रिसर्च है। इसके रिलेटेड भी गूगल पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये सच है क्या नहीं। ये फैक्ट है। बहुत लोग ऐसे हैं जो प्रेजेंटेशंस में भी इसके लिए इंटरैक्टिव क्यों रहना चाहिए। बहुत लोग ये जो पीपीटी देख रहे हैं वो समझेंगे, जो सुन रहे हैं वो ठीक है, बट बहुत लोगों को ऐसा है, जब तक वो बोलते हैं ना अनुभव नहीं होता है, तो वो बोलेंगे, उनके मन में डाउट से क्लियर होगा, तभी वो पॉसिबल है कि उन तक मेरी बात पहुंची है। ओके, सो ऑफ कोर्स एंड ऑफ द सेशन आई एक्सपेक्ट कि आप सच में डाउट्स पूछे। जैसे मैंने कहा, यहाँ पे वैदिक मैथ्स, ये मैथ्स की मास्टरी का भी है। 16 सूत्र सिखाए जाएंगे, जिससे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोई भी उसके जो बोल सकते हैं ना मैथ्स के फियर, मैथ्स क्विकली सॉल्व करेगा तो ऑटोमेटिकली फेयर भी निकल जाएंगे। यहाँ पे डॉक्टर मोहन पाकरे का फोटो भी दिया है। वो वीकली लाइव सेशंस लेने वाले हैं, पेरेंट्स के साथ भी, बच्चों के साथ भी, उनके साथ सेशंस होने वाले हैं जब ये ऑनलाइन प्रोग्राम रन होगा। साथ ही साथ लर्निंग स्ट्रेटेजी मास्टर, ऐसे कम से कम 50 स्ट्रेटेजीज बच्चों को मिलने वाले हैं। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे भी एक आप देखोगे परिवर्तन करके एक प्रोग्राम है। ये आप बोल सकते हैं पेरेंट्स के लिए भी एप्लीकेबल है कि लाइफ में जो है परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। बदलाव तो बहुत आ रहे हैं। अब जैसे कोरोना के वजह से काफी हद तक परिवर्तन हुआ है, वो हमने एक्सेप्ट किया है। सिमिलरली कुछ अच्छे परिवर्तन भी हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। ओके, अभी फिलहाल हम जो कर रहे हैं, लार्जेस्ट मैथमेटिक टेस्ट जो रख रहे हैं, ये टोटली फ्री टेस्ट है। इसलिए ये बोल सकते हैं ऑनलाइन मोड पे है। ये टेस्ट खास करके हमने जो रखा है, बच्चों को मैथ्स की जो फियर है वो निकालने के लिए रखा है। ओके, ये ऑलरेडी ऑफलाइन मोड पे कल्याण डोंबिवली में कम से कम 5000 बच्चों के साथ 17 स्कूल में, ये जो आप देख सकते हो OMG यानी ओ माय गॉड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में रजिस्टर हो चुका है। ये एक नेशनल रिकॉर्ड हमने क्रिएट किया है। और ये स्कूल्स में ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों को इसका जो है बोल सकते हैं अटेम्प्ट भी किया है, इसका सर्टिफिकेट भी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। बट अभी ये ऑनलाइन मोड पे हम इसके लिए ला रहे हैं क्योंकि वो जो 5000 बच्चे हैं कल्याण डोंबिवली के, ऐसे बहुत सारे बच्चे जो बहुत एरियाज में है, और हो सकता है उनमें से बहुत लोगों को ये मैथ्स की फियर हो सकती है। तो इसके लिए हमने अभी इसको ऑनलाइन मोड पे लाया है। जैसे ही बच्चा एग्जाम देगा, उनको ऐसा एक सर्टिफिकेट उनके मेल बॉक्स पे आएगा। जैसे वो पास फेल होता है, वो रिजल्ट के हिसाब से उनको ये मेल बॉक्स पे रिसीव होगा। साथ ही साथ उनको कुछ गिफ्ट्स के रिगार्डिंग डिटेल्स भी आएंगी, कुछ गिफ्ट वाउचर या जो गिफ्ट्स रहता है वो भी आएगा उसमें। ओके, टिल हियर किसी को कोई डाउट्स है एजुकेशन के रिलेटेड, यू कैन प्लीज आस्क। जिनको अर्निंग के रिलेटेड था, जैसे मैंने बताया 2 मोड्स है। फ्री फ्रेंचाइजी है, वहां पे आप जो है अराउंड 15 to 20% आप अर्न कर सकते हो, और एज अफिलिएट है तो अगेन आप 5% से 10% तक अर्न कर सकते हो। उसका कंप्लीट ट्रेनिंग, उसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन, सारी चीजें हमारे से प्रोवाइड आपको होगी। सो डोंट वरी अबाउट दैट। ऐसा नहीं है कि फ्रेंचाइजी लिया तो अभी आप देखो आपने लिया आपको पता, ऐसा नहीं है। जहां तक मेरे फाउंडेशन का सवाल है, जो प्रोजेक्ट्स हमारे फाउंडेशन थ्रू रन होते हैं उनके लिए मैं हमेशा सपोर्ट के लिए रहती हूँ। ओके, इसका क्लास ऑनलाइन होगा, यस। 15 जुलाई से, ये 15 जुलाई को इसका ऑनलाइन जो है ग्रैंड लॉन्चिंग होने वाला है फेसबुक पे। एंड इसके बाद ये कंप्लीट जो है ऑनलाइन क्लास रहेगा, क्योंकि इवन हमें भी नहीं पता कि आगे कितना चलने वाला है। अगर हम कस्टमर, ओके,
मतलब आप कुछ लिख रहे हो या क्या है एग्जैक्टली? ओके, टिल देन और किसी को कुछ डाउट पूछना है? अशोक सर, आप कुछ और लिख रहे हैं क्या? एक्चुअली सर आप माइक ऑन करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। कस्टमर देते हैं सर को, अगर हम कस्टमर देते हैं सर को, या वही अगर आप कस्टमर देते हो। हाँ जी बोलिए। आवाज आ रही मेरी? हाँ हाँ सर आ रही, बोलिए ना। अगर हम लोग समझिए जैसा इसमें से अगर हम सर को कस्टमर देते हैं, आपने बताया 5 to 10% हमको कमीशन मिलेगा, ओके। जी लेकिन वो जो पेरेंट्स हैं, जो हम आपको दे रहे हैं, उनको कैसे मतलब वो ये करेंगे, आपको अप्रोच आप लोग करके देंगे पूरा? हाँ, कंप्लीट उनको लॉगिन आईडी डिटेल सब आ जाएगा, और उसके साथ वो जो है पूरा गाइडेंस रहेगा। हाँ, सिर्फ जो है ओके। इसके लिए ये जो प्रोग्राम है ये 7th स्टैंडर्ड अबव रहेगा, वो मैं क्लैरिफाई करती हूँ, क्योंकि अगर छोटे बच्चे ओके। रहेंगे तो पेरेंट्स को बैठना जरूरी है। जो 7th हाँ। स्टैंडर्ड का बच्चा रहेगा वो उतना मैच्योर रहता है, वो खुद एक आजकल जैसे यूट्यूब चैनल भी खुद खोल के देख लेते हैं, तो वो पोर्टल पे हाँ, जाके खुद खोल के वो जो पूरा स्टडी कर सकता है। तो सो मतलब नो आप लोग वरीज उसको एक अबाउट दैट। सॉफ्टवेयर देंगे? सॉफ्टवेयर नहीं है सर, ये आप कंप्लीट ऑनलाइन सीरीज ये रहेगा, पूरा अच्छा, ऑनलाइन ऑनलाइन जैसे हम रहेगा। लोग वेबसाइट पे जाके कैसे स्टडी करते हैं वैसे। बट ऑफकोर्स ये फर्स्ट सेशन जो रहेगा, डॉक्टर मोहन पकरे खुद लाइव रहेंगे, ये रिकॉर्डेड सेशंस नहीं, ओके। ये लाइव सेशंस रहेंगे। इसके लिए हम इंसिस्ट करें कि मैक्सिमम बच्चे इसमें आए जिनको डायरेक्टली मोहन पकरे सर को सुनने मिलेगा। सो बहुत अलग ओके, एक्सपीरियंस रहेगा वो। तो इसका क्या मतलब रहेगा, फीस वगैरह? फीस के रिलेटेड डिटेल में बताती हूँ। अभी फिलहाल जो है ये हम लोग ने स्टार्ट किया है, फर्स्ट जो प्रोग्राम है ये हाँ। 2000 से स्टार्ट किया है। जो 2000 में उनको क्या क्या मिलेगा मैं आपको बताती हूँ। 2000 में ये पूरा मिलेगा, ये और ये, मतलब इनको ये पूरा, ये ओके। जो लेंगे ना ये, हाँ। और इसके साथ ये पूरा। सो ये कंप्लीट 1 साल तक वो हमारे से जो है लिंक में रहेंगे, क्योंकि ये कंप्लीट पूरा साल भर का उनका एक सिलेबस हम लोग ने उसमें कवर किया है। आप ओके। इतना तो गारंटी मान लो कि इसमें से कोई, जिनको अगर आप रेफर करते, फॉर एग्जांपल आपने मुझे बताया, समझो मैं जो आपके पहचान की हूँ, आपने बोला अरे आसिया मैडम हाँ। एक काम करो, ये मैंने सुना है कल वेबिनार में, और ऐसे ऐसे कोई हाँ। डॉक्टर मोहन पाकरे ये सिखा रहा है, आप एक काम करो, आपके बच्चे के लिए अच्छा है, ले लो। ऐसा अगर आप बोलते हो, हाँ। उसके बाद वो पेरेंट्स लेता है, मैंने ले लिया और इवन आई एम नॉट हैप्पी विद दैट, तो सर ऑन द स्पॉट वो हाँ। 2000 रुपए रिटर्न भी करने को रेडी है, और वो जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। तो ओके। उसका आप टेंशन मत लो, वो है वो देते ही है, बट अगेन ये मेरे से कंडक्ट हो रहा है। सो ऑफ कोर्स आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो कि ये पेरेंट्स सेटिस्फाइड नहीं है, ऑन द स्पॉट जैसे उन्होंने बोला 15 to 20 मिनट्स के अंदर उनको उनका फंड्स रिटर्न जाएगा। पर जैसे मैंने बोला, डॉक्टर मोहन पाखरे के बारे में आप खुद भी आप सर्च करोगे, आपको खुद को पता चलेगा कि उनका काम कितना बड़ा है। उन्होंने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी सिखाया, मिनिमम 1000 ऑफ स्टूडेंट्स को इंटरनेशनली पढ़ाया है उन्होंने, स्काइप या फिर जो बाकी जो मेथड्स है उसके थ्रू। और यहाँ पे लोकल ओके। स्कूल्स में काफी अच्छा उनका जो है रीच है, वहां पे पहुंचे। बट ये लॉकडाउन की वजह से काफी हद तक चीजें वर्कआउट नहीं हो रही, इसके लिए सर ने स्टैंड लिया कि नहीं, ये चीजें पहुंचनी चाहिए तो ऑनलाइन में ही सही, हम तो ऑनलाइन में ये इम्प्लीमेंट किसी करते स्कूल हैं। में जाके अप्रोच कर, अगर समझिए जैसा आप लोग जाते हैं, अगर किसी स्कूल में जाके अप्रोच करेंगे तो ऐसा नहीं लगता आपको कि आपको वहाँ से ज्यादा बच्चे मिलेंगे? हाँ जरूर, बट अभी स्कूल्स का आप स्टेटस देखिए ना, बहुत प्रॉब्लम है कि बहुत जगह स्कूल्स वर्क हो रही है, वर्क नहीं हो रही है। हाँ। तो ऐसे केसेस में ये इश्यू आ रहा है, और हम चाहते कि ओके। डायरेक्टली हम तो ठीक है, करेंगे चलेगा। ही। मेन थिंग है कि हम चाहते कि एम्पावर हो, लोगों तक ये बात जाए और लोग इसमें से अर्निंग करें। सी ये करना है तो ऑफकोर्स अकेले मोहन ओके। पाकरे सर भी काफी है, मेरी भी जरूरत नहीं है, ये चीज है। बट ठीक, अंडरस्टैंडिंग चलेगा की। मैम। ठीक है, जी आप हाँ समझ बोलिए। गए? नहीं, हेलो। समझ गया, जो आप बोल रहे हैं वो समझा नहीं। हाँ, और कुछ डाउट नहीं है ना, ऐसे कुछ नहीं रहेगा समझा तो मेरे को जरूर आपकी बात। बता। नहीं। जी ओके जी, ओके। बिल्कुल। जी थैंक यू। ओके, ये ओके, तो जैसे मैंने बताया ये भी एक मेथड है, आप पेरेंट्स को जो है ये भी लिंक दे सकते हो, जिससे सर डायरेक्टली उनको एक मेल सेंड करेंगे, आपको पास होता है तो सर्टिफिकेट जाएगा, उसके साथ ये जो मैंने बताया उसकी भी एक इंफॉर्मेशन कॉपी उनको जाएगी। ओके, सो नाउ कमिंग टू हेल्थ पार्ट। ओके, आई थिंक हमारे साथ एक लेडीज तो है, शोभना मैडम, ये एक्चुअली एक अस्मिता लीडर है, और कोई लेडीज रहती तो अच्छा था, बट नॉट एन इशू। आप लोग भी थोड़ा बहुत मुझे बता सकते हो, आपके घर में जो भी महिला वर्ग है जो काम कर रहे हैं घर घर का काम,
कितने लोग जो है कोरोना से पहले या अभी भी कोरोना के साथ ग्लव्स और मास्क पहन के घर में काम करते हैं? ऐसे कितने हैं? आपके जो है बोल सकते बेटी ऐसा काम कर रही है, आपकी बीवी वैसा काम कर रही है, आपकी माँ ऐसा काम कर रही है ग्लव्स और मास्क पहन के। कितने लोगों के घर में ऐसे है? मेरे घर में भी ग्लव्स मास्क पहन के काम नहीं किया जाता है, बट सच बताऊं, नो वन, राइट, नो वन। बट ये कोरोना से भी पहले की बात है कि लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एक छोटा लोगो दिया गया है। ये लोगो जो बताया गया, अमेरिकन जो है उन्होंने एक बोल सकते हैं रिसर्च किया है कि हमारे घर में कम से कम 100 टाइम ज्यादा कॉन्टेमिनेटेड यानी डेंजरस केमिकल हमारे घर में यूज होता है एज फॉर्म ऑफ क्लीनर, एज फॉर्म ऑफ पेस्टिसाइड। ये किसी को नहीं पता। यानी एक बर्तन धोने वाला साबुन से लेके जो आप टॉयलेट क्लीनर, बाथरूम क्लीनर यूज करते हो, यानी कि टूथपेस्ट तक भी यूज करते हो, उसमें भी केमिकल रहता है। तो इसके बारे में बहुत जनों को पता है, बहुत जनों को नहीं पता। और सबसे बुरी बात ये है कि इसके वजह से होता है कि ये जब टॉपिक मैं लेती हूँ तो लोग पूछने लगते हैं अच्छा मैडम फिर क्या प्रोडक्ट बेचना है, चेन बनाना है क्या? यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। चेन बनाना या प्रोडक्ट बेचना बहुत आगे की बात है। पहले ये तो समझो कि आपके घर में क्या है। उस जो भी आता है प्रोडक्ट आपके पास, कोई भी रहने दो, उसको पीछे मोड़ के जरा पढ़ो, वहां पे वार्निंग लिखा रहता है, कंटेंट्स लिखा रहता है जो हानिकारक है। और वो बेचना, और वो आगे की बात है, आप जिसको खरीद के लाए आपके खुद के पैसे देके, वो अगर केमिकल वाला है और आपके घर वाले वो यूज कर रहे हैं, आपके बच्चे उस कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो ये एज अ कस्टमर, एज अ कंज्यूमर कितनी गलत बात है, ये आप खुद सोचो। उसके लिए कंज्यूमर कोर्ट है। आई डू अंडरस्टैंड कितने लोग कंज्यूमर कोर्ट जाते हैं, वो भी नहीं पॉसिबल है। लोग नहीं जा सकते क्योंकि उनके खुद के शेड्यूल्स इतने टाइट है और उनको पता है गवर्नमेंट है, पता नहीं कब तक रिजल्ट आएगा। उससे जब प्रोडक्ट बदल दो, ये नहीं तो वो ले लो, इसमें केमिकल है ना वो लेंगे, उसमें केमिकल नहीं है, इस तरीके से एनालाइज होता है। टिपिकल होम प्रोडक्ट में देखेंगे तो यहाँ पे जो केमिकल्स के नाम दिए, ये सारे नाम वहां पे लिखे रहते हैं। ट्राइक्लोजोन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो सबको पता है, बहुत कॉमनली यूज होता है हर एक क्लीनिंग प्रोडक्ट में। बट इसके बारे में हमारी लेडीज को भी प्योर इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है। कि जेंट्स को भी ये पता रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जो पूरे 9 से 5 या 9 से 6 काम करते हो और जो काम करके एक सैलरी घर पे लेके आते हो, वो सैलरी का जो बोल सकते हैं आपका हार्ड अर्न मनी है, वो ये सब केमिकल्स में जाता है जो उसके बाद बीमारियां क्रिएट करता है। जो सच में इसके बारे में कोई नहीं सोचता है, सिर्फ पैसा कमाना, यही एक उद्देश्य अभी हो चुका है सबके लाइफ का। बट ये कमाते कमाते ये तो सोचो कि आपकी हेल्थ भी तो कम जा रही है। हेल्थ पे भी ध्यान देना उतना ही जरूरी है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो जो है टूथ डिके, यानी अभी से जो है 100, यहाँ पे जैसे दिया 1000 पीपीएम, मिनिमम 1000 पीपीएम तो रहता ही है किसी भी टूथपेस्ट में। कोई भी टूथपेस्ट आप उठाओ, वहां पे पीछे एकदम छोटे अक्षरों में ये पीपीएम कितना है, किसी में 1500 पीपीएम रहता है। ये बहुत हानिकारक है आपके बच्चों के लिए। बच्चों के दांत भी जल्दी खराब होते हैं इसके वजह से, जो फ्लोराइड केमिकल यूज किया जाता है। साथ ही साथ ब्लीच, कॉस्टिक सोडा, एसिड, इसके वजह से थायराइड, ब्लड कैंसर, ऐसी सारी हेल्थ इश्यूज होती है। खास करके महिला वर्गों के लिए तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें जानना। एनिमल एक्सट्रैक्ट और पारा और ये सब यूज होता है ब्यूटी प्रोडक्ट में। आप ये भी नहीं जानते, अगर कोई जेंट्स जो है, आप भी कोई ब्यूटी प्रोडक्ट यूज करते रहोगे, जैसे इवन आप बोल सकते हो आपका शेविंग क्रीम, उसको भी आप एक बार चेक कर लीजिए कि उसके पीछे कंटेंट्स क्या है। वो भी आपके स्किन को उतना ही इफेक्ट करता है। प्रॉब्लम ये है ना कि हम एक प्रोडक्ट जो बेचते हैं जागरूकता, वो प्रोडक्ट कोई खरीदने को तैयार नहीं। मैं वो फ्री में देती हूँ, बट वो कोई खरीदता नहीं है, ये प्रॉब्लम है। और ये सारी केमिकल वाली चीजें लोग पैसे दे दे के खरीद के लेके आते हैं, और इसके बारे में जागरूकता में करने जाओ तो कोई एक्सेप्ट नहीं करता। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, बाकी कुछ नहीं है। इसके बारे में सच में एक बार सोचना जरूरी है कि मैं जो भी है इसको पैसे दे रहा हूँ या उसको पैसे दे रहा हूँ, बट क्यों दे रहा हूँ और केमिकल लेके मैं क्या करूँ। अभी के तो इसमें आप जानते हो रोग प्रतिकारक शक्ति सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, और ये सारी चीजें आपके घर में रहेगी तो आप कितना भी अच्छा खाना खाओ, रोग प्रतिकारक शक्ति आपकी कम होगी होगी। ओके, सो ये आप बोलोगे अरे मैडम आप जो बोल रहे हो सल्फेट पैराबिन जो सोप्स और शैम्पू में, ये जो झाग आता है शैम्पू में, ये जो झाग आता है ये सल्फेट की वजह से आता है।
और वो टिकना चाहिए, इसके लिए यहाँ पे पैराबिन यूज किया जाता है। और ये डेंजरस प्रोडक्ट मार्केट में है। आप बोले कि मैडम इतने डेंजरस प्रोडक्ट मार्केट में क्यों रखे हैं, गवर्नमेंट एक्शन क्यों नहीं लेता है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप खुद ही समझदार हो। आप समझ सकते हो कि इसके ऊपर कोई गवर्नमेंट जो है बॉडी या रेगुलेटरी अथॉरिटी जो रहता है वो नहीं रहता। ये सबसे बड़ी दुविधा है। ओके, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ये भी कुछ है, अभी ऑफ कोर्स लेडीज नहीं है तो हाँ, ये एक चीज थी। आई थिंक जेंट्स है, बट शॉर्ट में डिस्कस करना चाहूंगी। एक जो लेडीज लोग जो सैनिटरी पैड्स जो यूज करती है, वो भी अगर आप देखोगे यहाँ पे एक बॉक्स दिया है, वहां पे ये पूरा जो है रद्दी पेपर और जो है मैगजीन्स है, उसके ऊपर ये जो है पाउडर डाला जाता है और ये डायऑक्सिन केमिकल डाला जाता है। और ये डायऑक्सिन केमिकल जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्लियरली बोला है कि इट्स अ वेरी वेरी डेंजरस केमिकल। एक साइनाइड जो रहता है, साइनाइड एक ऐसी डेंजरस केमिकल है जिसको आप जबान से लगाओगे तो भी मर जाओगे, उससे भी डेंजरस ये केमिकल है जो महिलाओं के लिए बहुत घातक है। फिर भी महिलाएं इनको यूज करती है, उनको पता नहीं रहता है कि क्या है क्या नहीं है। ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो महिला 15,000 ऐसे पैड्स यूज करती है। तो उन इमेजिन करिए कि 15,000 बार ये डायऑक्सिन केमिकल हमारे घर की बहू, बेटी, बहने, ये केमिकल उनको उतना इफेक्ट करता है। और सबसे बड़ी बात बताऊं ना, आप यकीन नहीं करोगे, हमने कल्याण डोंबिवली के पुलिस स्टेशन में ये कैंप रन किया और उन्होंने क्लियरली बोला कि मैडम आप कंज्यूमर कोर्ट बिंदास जा सकते हो, हमारा सपोर्ट है। एंड सेकेंड बात, महिलाएं ये सुनने के बाद कुछ शर्माती है, कुछ बोलने को तैयार नहीं थे, लेकिन जेंट्स वो खुद सामने से बोलते कि नहीं ये गलत है, हमारी बेटी क्यों ये जो भी है गंदा चीज यूज करे। क्योंकि अगर ये केमिकल डाला है तो अपनी बच्चियों को या हमारी बहनों को कितना इफेक्ट जाता रहेगा इसके ऊपर, हमने कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं है। ओके, तो इसके ऊपर सच में सोचने की जरूरत है। और जैसे मैंने कहा, और ये जो सारी चीजें आती है हमारी अस्मिता प्रोजेक्ट में आती है। यहाँ पे हम खास करके ऑफकोर्स जो जेंट्स जॉब पे रहते हैं तो हम ये जो लोकल हाउसवाइफ्स रहते हैं उनके साथ ये प्रोजेक्ट रन करते हैं। बट जैसे मैंने बताया या आप जैसे बताया, एडवर्टाइजिंग की वजह से बिकता है, यही तो प्रॉब्लम है ना सर। जो एडवर्टाइजमेंट में दिखता है फिर हम लेके आते हैं, बट पढ़ा करो ना, हर एक जन बोलते हैं। इवन एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के टाइम भी वो बोलते हैं कि पढ़िए। हम जो है वो लिखा रहता है कुछ लाइन कि जोखिम के लिए हम जिम्मेदार नहीं है। आप पढ़ो, ईच एंड एवरीथिंग पढ़ो और फिर खरीदो। सिर्फ मेरा सिर्फ एक ही मानना है, मैं नहीं बोल रही कि अभी से आप जो मैं बोल रही वो करो, बट एक सिंपल सी बात है, आज आपके घर पे एक भी चीज आ रही है उसके लिए आप दिन रात मेहनत करते हो। चलो अभी तो चीजें बंद है, लोकल ट्रेन वो सब, आप देखो सुबह से लेके रात तक हमारी लोकल ट्रेन भागती रहती है, लोग लटक लटक के काम पे जाते थे। अभी भी कई जगह पे जहाँ पे बस सर्विस है, ट्रेन नहीं, लोग बस में भी बहुत गर्दी करके जाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कुछ नहीं रहता है, नहीं रख पाते क्योंकि घर में पैसा आना जरूरी है, इनकम आना जरूरी है। तो लोग वो रिस्क उठाते हैं, बोलते हैं कि नहीं हमारे घर में बच्चा है, बीवी है, उनके लिए मुझे खाना देना है, रोज का जो है डेली उनको कुछ ना कुछ मुझे इनकम देना ही पड़ेगा, मुझे काम पे जाना ही पड़ेगा। तो वही तो प्रॉब्लम है, हम जब इतना बोल सकते कष्ट करके पैसे कमा रहे हैं और अगर वो सिर्फ एक एडवर्टाइजमेंट देख के हम वो चीज लेके आते हैं बिना कुछ सोचे समझे, वो चीज लेते वक्त खरीदते वक्त भी पढ़ना चाहिए ना। बहुत जन एक्सपायरी डेट भी नहीं पढ़ते हैं, बहुत कम, जो डेली यूज करने वाली चीज है उसका ही पढ़ा जाता है। जो आपका हार्पिक या ऐसे कोई भी जो भी कंपनीज है, मुझे किसी का नाम नहीं लेना, पर जो भी कंपनीज है हर चीज के पीछे आप पढ़ो उसका एक्सपायरी डेट क्या है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। ओके, तो इसके वजह से एक्चुअली ये प्रोजेक्ट हम तभी रन करते थे लेडीज लोगों के साथ जिसमें हम माहिती का अधिकार से लेके हर चीज की ट्रेनिंग एक नॉर्मल लोकल हाउसवाइफ्स को देते थे। और होता था कि कभी कभी वो जो हस्बैंड से बोलते थे ये सीख के क्या करेगी, बट सच में ये सबको पता होना जरूरी है, सिर्फ उनको नहीं आपको भी उतना ही पता होना जरूरी है। माहिती का अधिकार एक ऐसी चीज है, आप अगर भारतीय नागरिक हो तो आप किसी भी चीज की माहिती पूछ सकते हो। एक सिंपल एग्जांपल है, आत्मनिर्भर भारत ये प्रोजेक्ट निकाला गया गवर्नमेंट की तरफ से, 20 लाख करोड़ की जो है पैकेज डिक्लेयर हुआ है। कभी आपने सोचा आप भी नागरिक हो तो आप क्या जाके इसका बेनिफिट ले सकते हो, या इसके बारे में कुछ तो पूछे, राइट।
ये सारी चीजें बट कोई नहीं करने जाता है। इसके ऊपर गॉसिप बहुत होती है, हाँ पता है पैसा किधर गया रहेगा, बट गॉसिप करने से अलग आपके घर में जो अभी फिलहाल कंडीशन है उसको सुधारने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना जरूरी है। हाँ मैं मानती हूँ कि अचानक से आप गवर्नमेंट से फाइट नहीं कर सकते, बट जो सिस्टम है उसको फॉलो कर सकते हो। हमने किया है, हमने हर एक चीज, हर एक डिपार्टमेंट को मेल डाला है, हर एक डिपार्टमेंट से माहिती मांगी है, चाहे वो पुलिस हो या कोई भी हो। हमने वो सारी चीजें की है हमारे फाउंडेशन थ्रू। इसके लिए मैं बोलती हूँ हमारा फाउंडेशन जो वो अलग तरीके से काम करता है, टिपिकल फाउंडेशन की तरह काम नहीं करता। हम किसी से भी फंड्स नहीं लेते, किसी से भी डोनेशंस नहीं लेते। हम खुद ये सारा शिविर है या खुद जो भी प्रोग्राम से अरेंज करते हैं, इवन ये सारा ट्रेनिंग्स मैं फ्री ऑफ कॉस्ट देती हूँ, क्योंकि ये एक सामाजिक बोलते हैं ना, एक हमारे में सामाजिक बांधिल की बोलते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं आपकी सामाजिक जिम्मेदारी है, ऐसा मुझे लगता है। अभी मुझे नहीं पता आप कितने लोग एग्री होंगे, बट सीरियसली जिस समाज में हम रहते हैं, जिस देश में हम रहते हैं, थोड़ा बहुत हमारा एक कंट्रीब्यूशन होना जरूरी है। और कंट्रीब्यूशन कैसा, पैसों से नहीं, आप खुद जागरूक हो के अगर किसी को जागरूक करते हो, उससे अच्छी चीज कुछ भी नहीं है। मुझे रोज सुकून की नींद आती है, लॉकडाउन में भी। अभी आज जो मैंने सेशन लिया है, मुझे सुकून मिला कि यहाँ पे जो भी 2 से 3 जन आए हैं, मेरे लिए बहुत इनफ है कि मैं 2-3 जन को अगर ये जागरूकता दे पाई तो वो सोचेंगे, और उसके हो सकता है वो खुद ना करे लेकिन किसी को बताएंगे, अरे एक मैडम है जागरूकता के बारे में बोल रही, तू जाके सुन ले, देखो अच्छा लगा तो कर। सिंपल बात है, और कुछ नहीं है। ओके। फिर जैसे मैंने कहा बेसिक चीज, जैसे सर ने काफी अच्छा मुद्दा बताया, एडवर्टाइजमेंट। तो सच बताओ ना सर, एडवर्टाइजिंग के लिए वो लोग लाखों रुपए डालते हैं, बट सबसे बेस्ट एडवर्टाइजिंग जो रहता है वर्ड ऑफ माउथ का रहता है। ये हर एक जन एग्री करेगा, और इसमें वर्ड ऑफ माउथ में महिलाएं सबसे ज्यादा आगे रहती है। अगर वो महिला को कोई चीज पसंद आती है तो वो और 10 लोगों को बताती है। सिमिलरली जेंट्स भी, आपको कोई सजेस्ट करे मेरे को गाड़ी लेना है कौन सी लूं, मुझे मोबाइल लेना है कौन सा लूं, आप जरूर बताएंगे अरे मेरे पास सैमसंग है ले, मेरे पास रेडमी है ले, तू भी ले अच्छा है। मॉडल के साथ आप सब बताओगे। मुझे बताओ ये सब आप बताते हो, आपको कोई इनकम आता है? ऑफ कोर्स नहीं आता है, राइट। तो जब हम ये सब के पिक्चर्स पिक्चर्स तो हम वो सबको बताते हैं, अरे बहुत अच्छी मूवी जहाँ पैसा वसूल है। जब हम ये बोलते हैं कि पैसा वसूल है, मजा आ गया, तुझे भी मजा आएगा, ये सब जब बोलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं हम लोग, राइट। सिर्फ इश्यू क्या है कि ये सारी चीजें जो है, कभी कभी क्या होता है, कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में आप सुनते हो और आपको लगता है कि हाँ वैसा ही सेम चीज मैडम रन कर रही है, तो ऐसा नहीं है। हमारे पास ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स है जिसमें आप अगर लाइफ टाइम कस्टमर भी रहते हो तो भी आप उसमें से भी काफी हद तक सेविंग कर सकते हो, उससे भी काफी हद तक कोई भी बिजनेस कर सकते हो। इसमें लोगों को जोड़ना, जबरदस्ती उनको मीटिंग्स में बिठाना, ऐसा कुछ नहीं करना है। क्योंकि मैंने पहले ही बोला ये पूरा मिशन रिबूट ये प्रोजेक्ट है, आपको खुद को परिवर्तन करना है, आपको खुद को सेल्फ एम्पावर करना है। अगर आप अकेले जागरूक होते हो ना, कोई जरूरत नहीं आपको बाहर जाके मार्केटिंग करने की। अगर आप जागरूक होगे तो आपको देख के आजू बाजू वाले जरूर बोलेंगे क्या बात है इतना स्माइल कर रहा है, क्या हुआ, एक ये लाइन पूछेंगे ना, बस फिर। क्योंकि आप में वो बदलाव दिख रहा है। वही अगर आप यही टेंशन में जी रहे हो, सी देखो जीने के 2 ही तरीके हैं। जैसे आई थिंक सो एक अच्छी सी मूवी थी, याद नहीं आ रहा है मेरे को, तो वो जो उन्होंने बोला 2 ही तरीके से जियो। एक तो है जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, आप एडजस्ट होके जियो, नहीं तो अगेंस्ट द ऑड आप अलग सोचो और अच्छे से जियो, अपने हिसाब से जियो। सो चॉइस इज योर्स। आपको जैसे जिन आप बोलेगे नहीं मैडम मैं वो केमिकल वाला ही खा के ठीक हूँ, मेरा बच्चा जैसा पढ़ रहा है वैसे ही ठीक हूँ, इट्स ओके, इट्स योर चॉइस। क्योंकि वो आपके कमाई का पैसा है, आपको उसको कैसा यूटिलाइज करना है, क्या करना है, ये पूरा का पूरा आपका जो है अधिकार बनता है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जागरूकता तो कम से कम आप 4 लोगों तक पहुंचाए कि चलो मुझे नहीं पसंद आया या मुझे ठीक लगा, मुझे नहीं करना है, किसी और को तो मैं जरूर बता सकता हूँ। इतना आप जरूर करिए, बहुत बहुत बड़ा योगदान आपका रहेगा ये मिशन रिबूट के लिए। ओके। सो यहाँ पे जैसे मैंने बताया ये सारी चीजें जो भी मार्केट में है, सिर्फ हेल्थ प्रोडक्ट के रिलेटेड नहीं बात करी, इवन एजुकेशन का इतना बड़ा मार्केट हुआ है। पहले होता था कि एजुकेशन को एक भगवान का रूप दिया जाता था, सरस्वती बोलते हैं, बट अभी तो उसकी रिलेटेड भी मैंने किसी आई थिंक पहचान वाले से ही सुना था कि प्राइवेट स्कूल अभी जबरदस्ती चालू कर रहे हैं ऑनलाइन।
ताकि वो फीस कलेक्ट कर सके। ओके, सो ये सारी चीजें हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम इसके बारे में जो है ज्यादा, मैंने बोला कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, और जो है वो उतना तक जाती नहीं है लो लेवल तक देखने के लिए कि भाई ये गांव में क्या हो रहा है, ये शहर में क्या हो रहा है, उसके बारे में कोई जागरूकता कोई करने को रेडी नहीं है। और साथ में हम ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहते कि बाकी जगह पे करेंगे, बट कोई अच्छी चीज रहेंगी तो हम 10 बार सोचेंगे, नहीं नहीं, अगर 100 रुपए में अगर ये चीज आ रही है और वहां पे को 10 रुपए में मिल रही, मैं 10 रुपए का लेके आऊंगी। बट कॉमन सेंस की बात है, जो सस्ता मिलता है उसकी क्वालिटी नहीं रहती। बेस्ट एग्जांपल इज चाइना के, कोई भी एग्जांपल लो, जो आपको कम दाम में मिलेगी उसकी क्वालिटी, और जो आप बोल सकते हो कि एक्सपेंसिव है कि उसकी क्वालिटी में हमेशा जमीन आसमान का फर्क रहेगा। ये आप खुद भी एज अ कस्टमर आप जानते हो इस बात को। ये पूरा जो सेशन है ना, आप सब जानते थे इसके बारे में। आई होप सिर्फ एक सैनिटरी पैड का जो था कंसेप्ट वो आप नहीं जानते रहे, बट अदर देन दैट आप ये सारी चीजें जानते हो। आपने ही बहुत सारे जवाब मुझे दिए, राइट? तो ये सारी चीजें के वजह से आपके लिए पूरा मार्केट ओपन है। जैसे मैंने बताया, नो एंड लो अवेयरनेस, इसके बारे में सच में कोई जागरूकता नहीं करता है। आप बोल सकते हो मैं इकलौती एक पागल हूँ जो ये जागरूकता कर रही हूँ। बाकी कोई इस पागलपन में बहुत सारे लोग हैं, बट कम लोग हैं। क्योंकि कोई भी बोलेगा भाई मेरा घर चले वो इम्पोर्टेंट है, मैं कहाँ जागरूकता करते घूमूं, तो वो काम मैंने ले लिया है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। आप अगर किसी को हमारे शिविर में लाते हो, अभी तो इजी हो गया ऑनलाइन जूम मीटिंग थ्रू, फेसबुक लाइव भी मैं करती हूँ, उसमें अगर आप किसी को बिठा सकते हो आप बिठा सकते हो। उतना भी आप करोगे तो भी आप इनकम अर्न कर सकते हो। बट मैं चाहती हूँ कि सिर्फ इनकम के लिए आप मत आइए। इनकम तो है ही, नो डाउट, बट सिर्फ इनकम के लिए मत आइए। मैं चाहती हूँ कि ये जो चीज मैं बोल रही हूँ ना, ये आप भी सबको बोल सकते हो। हाँ, पहले आप एक्सपीरियंस कीजिए। मैं ये नहीं बोल रही कि आज मैंने जो बोला आप कल जूम मीटिंग लेके किसी और को बताइए, बिल्कुल नहीं। आप खुद एक्सपीरियंस कीजिए इस चीज को। अगर आपको ये सही लगता है तो जरूर और जरूर आप भी ऐसे शिविर ले सकते हो। कुछ भी अलग मैं नहीं बोल रही, मैं भी एक कस्टमर थी पहले। ये सारे प्रोडक्ट्स मैंने भी यूज किए, ये जो मैं बोल रही वो नहीं, इसके अलावा जैसे मैंने कहा मार्केट में इतने सारे प्रोडक्ट्स है, मैंने भी यूज किए। लेकिन जब मुझे पता चला इसके इतने केमिकल इफेक्ट्स है जो मेरे 4.5 साल का बच्चे को भी इफेक्ट करता है, मेरी जो 63 इयर्स की माँ है उन पे भी इफेक्ट करता है, जब मुझे ये पता चला तो ऑफकोर्स मैंने भी सोचा कि इसके ऊपर एक्शन लेना बहुत जरूरी है। और हमारा बैकग्राउंड में काम चल भी रहा है, उसके रिगार्डिंग मेल्स भी डाल चुकी हूँ, उसके रिगार्डिंग बहुत सारे रिकॉर्डिंग्स भी हमारे पास अवेलेबल है। बट ऑफकोर्स जैसे आपको पता है प्रोसीजर से जा रहा है वो, और अभी लॉकडाउन की वजह से ऑब्वियसली वो सारी चीजें अभी लॉकडाउन के बाद ही जो भी रहेगा, केस रजिस्टर होगा, वो सारी चीजें बाद में रहेंगी। बट ठीक है, वो उसका आप टेंशन मत लीजिए, वो सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं बैकग्राउंड में, तो कोई इश्यू नहीं है। बट ऐसा कुछ आपके नजर में आएगा तो जरूर हमें बताइए, वी वुड टेक अ नोट ऑफ इट। और ये सारी चीजें हम जरूर पहुंचाएंगे कंसर्न ऑफिशियल के पास कि ये एग्जैक्टली हो क्या रहा है, क्यों आम आदमी जो है हर चीज में पिस रहा है। ये उसका हक है जानने का कि ये चीज क्यों हो रही है। ओके, सो यहाँ पे भी आपको एज अ अफिलिएट आप 5% टू 15% हेल्थ के रिलेटेड भी कमा सकते हो। और वो मैं बोल रही सिर्फ जागरूकते पे भी कमा सकते हो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, नेक्स्ट। तो यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज है, अपॉर्चुनिटीज ये है कि अगर किसी को फ्रेंचाइजी लेना तो वो लोकल एरिया में ही काम कर सकते हैं। जैसे मोदी जी ने बताया बी वोकल फॉर लोकल, ये मिशन हमने अभी नहीं किया है, ये मिशन हमने पहले ही किया है। हमारे जो है चेंबूर एरियाज में कुछ लेडीज है जो ऑलरेडी काम कर रही है, मानकुद एरिया में काम कर रही है, शहाड़ एरिया में काम कर रही है, उल्लासनगर 1 में काम कर रही है, कल्याण में काम कर रही है, ठाणे में काम कर रहे हैं। वहां पे ऑलरेडी जो लोकल लेडीज है उनके साथ हमारा काम ऑलरेडी चल रहा है। उनको बहुत अच्छा सपोर्ट है जेंट्स से, तो बहुत अच्छा लगा कि जेंट्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस चीज में। ओके, अगेन एज आई सेड, नो इन्वेस्टमेंट नो डिपॉजिट रिक्वायर्ड। ये पूरे प्रोजेक्ट में आपको इन्वेस्टमेंट या डिपॉजिट कुछ नहीं रखना है, कुछ नहीं देना है। ओके, लाइफ टाइम फ्री ट्रेनिंग, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मेरे तरफ से फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट कि अभी किया बाद में आप पैसे चार्ज करोगे, बिल्कुल नहीं। जो मैंने बोला ये प्रोजेक्ट तो ऑफकोर्स एंड ऑफकोर्स कंप्लीटली मिशन रिबूट प्रोजेक्ट में एक बोल सकते एक सामाजिक जो जिम्मेदारी है उसके तहत रन कर रही हूँ। ओके, अगेन ऑल एक्टिविटीज विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन पोस्ट लॉकडाउन। ऑफकोर्स मैं उस एरिया में विजिट भी करूंगी,
नो वरीज। बट अभी फिलहाल के लिए जैसे आपने बताया कि रीबूट मेरा जो है लॉकडाउन के बाद मैं रिस्टार्ट करूंगा लाइफ, ऐसा नहीं है। विद इन दैट टाइम आप खुद को रिस्टार्ट कर सकते हो, यानी कल भी अगर आप आज सोचते हो तो कल से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, देन वर्क फ्रॉम होम प्रोजेक्ट ऑफकोर्स जैसे मैंने कहा इसके लिए कंप्लीटली आपको यहाँ वहां घूमने की जरूरत नहीं है, और घूमिएगा भी नहीं, क्योंकि अभी जैसे बहुत न्यूज सुनने आता है। तो प्लीज आप घर पे ही रहिए, और घर से ही जितना हो सके जब आपको फ्री टाइम रहेगा, अगेन मैं ऐसा नहीं बोल रही कि आपको 24 घंटे इसमें बैठना है, आपको जब भी फ्री टाइम रहेगा यू कैन अटेंड अ वेबिनार सर, या फिर आप किसी और को भी आप बोल सकते हो कि आप ये वेबिनार अटेंड कीजिए। उस हिसाब से आप जो है हमें पता चले, आप बता दीजिए कि इस बंदे ने अटेंड किया है, उस हिसाब से हम जरूर आपको बताएंगे कि किसने अटेंड किया और उनका क्या रिस्पॉन्स है। ओके, सो ऐसे बहुत से प्रोग्राम्स आप देख सकते हो। ऑफकोर्स ये जैसे मैंने बताया मैं महिला सबलीकरण में ज्यादा काम कर रही थी, सो ऑलरेडी हमारे यहाँ पे मुंबई रीजन्स में हुआ है, सोलापुर में है ऑफकोर्स। हाँ। हम्म। हेलो, जी मैं ऑडिबल हूँ अभी। अगर आपके कुछ डाउट्स है तो आप प्लीज पूछ सकते हो। जी हाँ, पूछिए। आप अपने आप को अनम्यूट कर पा रहे हो क्या? हेलो। हाँ बोलिए। जी हाँ, हेलो। सुनाई दे रहा है, बोलिए। मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो। यस मैम। हाँ हाँ, जी सर डाउट पूछिए आज के हेलो। सेशन के रिगार्डिंग। सिंपल ये बताइए कि जागरूकता में आपकी क्या क्या प्रोडक्ट्स जो है आप वो बेचते हैं, या जो आप बता रहे थे कि आप फ्री भी बांटते हैं, तो जागरूकता एक्चुअली मेरा एक जनरल स्टोर भी है। नहीं 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 नहीं, वो जागरूकता नहीं सर, ये जो कॉमन टर्म है जागरूकता, वो जागरूकता है, अच्छा, इसको ओके। बोल सकते हैं आई कि थॉट कि आपका अवेयरनेस, कोई ऐसे मतलब ये है। इसको बोल सकते ओके हैं। ओके। हाँ वो है, अब मैं किसी को कॉपीराइट या कुछ नहीं कर रही हूँ, टेंशन नहीं लीजिए। जी हाँ, हम इसमें अच्छा, अस्मिता मुझे प्लस लगा कि में। आपके कोई प्रोडक्ट्स हैं जो आप जागरूकता के नाम से बेचते हैं। नहीं नहीं, जागरूकता के नाम से मैं सिर्फ जागरूकता ही देती हूँ, क्योंकि जैसे मैंने कहा माहिती का अधिकार ओके। मैं खुद डाल रही हूँ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पे, तो तभी मैं कुछ गलत नहीं करूंगी, ये मुझे केयर लेना जरूरी है। जब मैं किसी को बोलती हूँ तो पहले वो सारी चीजें मैं करती हूँ। अगर मैं कोई प्रोडक्ट भी आपको सजेस्ट करूंगी तो पहले सारी चीजें, सिर्फ मैं नहीं तो मेरे घर में जो 3 पीढ़ी है, मेरा बच्चा 4.5 साल का, मैं 35 ईयर्स की, और मम्मी 63 एज की, हम तीनों ने बहुत सारी चीजें ट्राई करने के बाद ही वो रिजल्ट लिया है, उसी के बाद हमने ये हमारे फाउंडेशन में डाला है। उसके अलावा हम कभी भी किसी का सिर्फ पैसे मिल रहे इसके लिए प्रोजेक्ट नहीं लेते हैं, कभी नहीं। अभी भी पाइपलाइन में प्रोजेक्ट्स है अच्छा। जैसे मैंने बताया। सो इट्स नॉट ओके। पॉसिबल कि हम ऐसे ही कुछ भी बेचना शुरू करेंगे, ऑफकोर्स नॉट। मेरा सिर्फ बेसिक है कि आप लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन भी देते हैं, फिर भी आप अर्निंग कर सकते हो। इतनी पावर ये जागरूकता में है जो लोग नहीं जानते हैं। सी जागरूकता एक सिंपल टर्म है, जैसे आपने बताया एडवर्टाइजमेंट है, वो जागरूकता ही हुई ना। आप जानते हो उस प्रोडक्ट के बारे में, इसके लिए तो जाके खरीद के लेके आते हो पैसे देके, तो ये तो फ्री में है ओके। और इससे आपको अर्निंग भी मिल रही है, तो क्यों छोड़नी है चीज, ये इम्पोर्टेंट है।
और आप देखिए जैसे मैंने कहा एजुकेशन और हेल्थ के रिलेटेड लोग कितने जागरूक है, हमारे ग्रुप में कितने लोग हैं, कितने लोग आए मीटिंग में, यही तो प्रॉब्लम है। दो जी नहीं, वही दो बात। के प्रॉब्लम नहीं, आप एंड तक रुके हो सर, थैंक यू वेरी मच, रियली थैंक यू। क्योंकि यही तो प्रॉब्लम है कि लोग नहीं समझ पाते हैं कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है नहीं हमारी लाइफ समझते। की। तो ये भी अगर लोगों तक पहुंचे ना सर, फिर भी मैं सोचूंगी कि बहुत बड़ा काम हुआ है मेरे तरफ से। आप जो एक जो एम्पावर हुए हो काफी है। अगर आप 4 लोगों को नहीं भी बताते बट थैंक आप यू मैम। खुद एंड तक रुके हो, इससे बड़ा। और अभी टेक्निकल प्रॉब्लम भी है, मेरा वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया तो मैंने मोबाइल का नेट लगाया, बट मुझे लगा कि शायद कोई नहीं रुकेगा। आप हाँ और हमारी जो शोभना मैडम है, जो अस्मिता लीडर करके है, वो दोनों, आप दोनों एंड तक रुके हो। मैडम तो ओके। ऑफकोर्स हमेशा मेरा साथ देती है, वो उल्लासनगर एक एरिया में रहती है, वो हमेशा रहती है, इवन दो वीडियो ऑफ करना पड़ता है, सब इंटरनेट प्रॉब्लम है, बट वो मेरे को बस यही पूछना था कि जो आपने बताया हम्म, आपने जो बताया उल्लासनगर एक में जो मैडम है, जो हम्म, अभी यहाँ पे है मेरे साथ ज्वाइन, जी। जिया नाम है उनका शायद। जिया उनके बेटी का नाम है, उनका नाम शोभना मैडम है। एक्चुअली मैं वही देख रही थी, स्लाइड शेयर नहीं हो पा रहा है कुछ टेक्निकल इशू की वजह से, बट ये सारी चीजें हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, हमारे पैनल मेंबर्स कौन है, क्या है, हमारा क्या काम है। हाँ अगर आप चाहिए तो मैं वेबसाइट मैं आपको भी। हाँ, ग्रुप में ऐड हो क्या मिशन रिबूट के? हाँ जो आपने कल जो हाँ ये हाँ ग्रुप हाँ, बनाया था जी व्हाट्सएप जरूर। पे, हाँ उसमें मैं ऐड हूँ। और दूसरा मेरे को ये पूछना था कि जो मैडम है जो उल्लासनगर एक में रहती है, ठीक है, जी, तो ये एक्चुअली मैं भी उल्लासनगर उल्लासनगर में एक रहता हूँ, नहीं तीन बोलते, नंबर में रहता हूँ। वरप एरिया में रहती है वो, बट आपको हाँ सपोर्ट तो कर मैं मेरा सकते तो हैं। वरप में भी। ओके। अच्छा तो मतलब किस, आपने बताया कि वो अस्मिता से ज्वाइंट है, ओके। जी, तो अस्मिता में रह के वो क्या क्या कर रही है, यही जो मैंने बताया, ये कैसे सारे अवेयर कर रही है प्रोडक्ट्स, लोगों को, हाँ ये सारे ये प्रोडक्ट्स सारी जो है, चीजें बताती है। हाँ वो क्या करती है पता है आपको, वो भी अभी अभी ये अस्मिता लीडर बनी है, क्योंकि वो अभी मेरे से कांटेक्ट में ओके। आई थी अराउंड आई थिंक सो 5 महीना हुआ है मुझे, कंसिडरिंग लॉकडाउन। अगर हाँ लॉकडाउन के पहले 2 महीने पहले ही जस्ट मिली वो मुझे। और मेरा कैसा खुद का सीएससी केंद्र है, बट जितना रिस्पांस मुझे गवर्नमेंट से मिलना चाहिए उसके लिए भी नहीं मिल रहा है, वो तो अलग ही केस है। तो मेरा हमेशा वो फाइटिंग ही चलता रहता है कि कुछ ना कुछ जो गलत हो रहा है उस पर कुछ एक्शन ली जाए। बट साथ ही साथ मैंने ये भी चीज जरूरी समझा कि मैंने जो एक्सपीरियंस लिया है वो आम लोगों तक जाना जरूरी है। जो अभी मोदी जी ने बताया कि बी वोकल फॉर लोकल, वो तो हमने ना पहले ही पता था कि अगर किसी को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उनको बोलेंगे तू मेरे पास आ, हाँ या हमारी ट्रेनिंग ये जगह पे है, तो कोई लेडीज नहीं जा पाती है। अभी भी वो जो मैडम है राइट। शोभना मैडम, वो एग्रीकल्चर डिप्लोमा है, जो हमें पता नहीं था, हम वही सोच रहे हैं हाँ ये तो एक गृहिणी है, ये तो हाउसवाइफ है, ओके। वही नजर से देखा जाता है। उनके अंदर क्या क्या खूबियां है, उनको आगे भी कुछ करना है लाइफ में, ये सारी चीजें कभी नहीं सोची जाती है। और ऐसा नहीं कि हम बोलेंगे फैमिली का दोष है, वो औरत खुद ही नहीं समझती है, वो उसी चीज में उलझी रहती है, मेरा बच्चा, मेरा घर, घर के जो है सीरियल्स, यही सारे में उलझी रहती है। अभी भी सीरियल चालू होने वाले राइट। 13 तारीख से, आई एम डैम श्योर उसके ऊपर घर में हर एक के रामायण होने वाला है। तो ये सीरियल क्यों चालू करे मुझे भी नहीं पता, बट जाने दो, वो अलग ही केस है। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे जो मिशन, ये जो मेरे सेमिनार्स होते हैं, अगर उसमें भी कोई बैठता है, कोई एक जन भी रहेगा ना, अगर वो मेरा पहले का भी मेंबर रहेगा तो भी चलेगा मुझे, बट इसमें मेरे स्किल्स डेवलप हो रहे हैं, ओके। ये समझते नहीं है लोग, यही तो प्रॉब्लम है। मेरे स्किल इम्प्रूव हो रहे, मुझे इनकम आ रहा है, आपको भी तो आना चाहिए, इसीलिए तो मैं कर रही हूँ। सो इसके रिगार्डिंग अगर आपको और भी इंफॉर्मेशन चाहिए, यूट्यूब की भी चाहिए, तो मैं लिंक डाल देती हूँ। अभी तक जितने भी प्रोजेक्ट्स हुए, कुछ मराठी में है और कुछ हिंदी में भी है, तो वहाँ पे हाँ मैंने मेंशन किया है हिंदी, तो आप वैसा देख सकते हो। ओके, उसके अलावा कुछ ठीक है डाउट है मैम, आप सर? लिंक डाल दीजिए। नहीं और कुछ भी डाउट नहीं है, बस ओके, खाली कुछ, वही पूछना था मेरे को। हाँ कुछ रहेगा तो आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो, नो वरीज। नो नो इशू। ओके, एंड थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर, आप इतना एंड तक रुके, थैंक्स अ लॉट सर। नो इशू। या, थैंक यू वेरी मच। सो ये सेशन अभी मैं एंड करती हूँ। शोभना मैडम, अगर आप सुन रही हो तो थैंक यू वेरी मच। मैं समझ पाती हूँ आपके इंटरनेट इशू है शायद, है क्या? हाँ हाँ पता है। फिर भी थैंक यू, आप एंड तक रुकी। और हमारे महिला वर्गों को भी अभी ऐसे सेशंस में हमें लेके आना है, ओके? ओके चलेगा। चलो ऑल ऑफ यू टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम।
ओके, चलो बाय बाय।